again. A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, children, today we all are going to continue our chapter number 6 of your book, Contemporary World Politics. And the name of your chapter is International Organization. And according to the update, the name of the chapter is United Nations and its Organizations. In our last class, we discussed about the reforms of the UN after the Cold War, after the disintegration of the Soviet Union, why there is a huge need to change the structure of the United Nations. We have gone through the arguments given by different countries. ठीक है, उनके क्या arguments थे? Everybody was like agreed that we need to reform UN, but they were not able to agree on what we all are supposed to do. Okay, for example, like we have seen like structures and processes made on the reforms of structures and processes. Some country want there should be a change in the membership of permanent and non-permanent membership of Security Council. Okay, and some Western countries wanted to want improvements in budgetary procedures, and in the jurisdiction we have seen some countries wanted that the UN organization play a very significant role, greater role in peace and security missions, while other were thinking we need to improve, we need to focus more on development and humanitarian work. Okay, so now today we will after that we have also seen like what were the causes, or why do we need to change, why do we need to change the United Organizations after the Cold War. We have gone through some of the points. So now our today's topic is reform of structure and processes. Reform of structure and processes on page number 88. So, while the case for reform has widespread support, getting agreement on what to do is difficult. Obviously, the main task in front of the United Nations is what to do, how do we reform, what to do to reform the structure of the UN. ये जो टास्क था ये बहुत ज्यादा क्या था, डिफिकल्ट था. So let us examine the debate over the reform of the UN Security Council. एक एग्जाम्पल देखते हैं जो UN Security Council का रिफॉर्म था उसके लिए जो डिबेट्स चली थी उस पे फोकस करते हैं. In 1992, the UN General Assembly adopted a resolution. The resolution reflected three main complaints. जो जनरल असेंबली थी, जनरल असेंबली कंप्राइजेस ऑफ 193 मेंबर्स. प्रेजेंट वर्ल्ड में 193 मेंबर्स हैं जनरल असेंबली में. ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो है जनरल असेंबली में शो करते हैं. तो वहां पे जो है जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया था, और इस रेजोल्यूशन में मेन थ्री कंप्लेंट्स जो है वो रिफ्लेक्ट की गई थी. First is the Security Council no longer represents contemporary political reality. सबसे पहला जो था उनका कहना था ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है जो भी हमारे कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. Because as you all know, after the Soviet Union unipolar world बन चुका था. उससे पहले बाइपोलरिज्म था तो चीजें डिफरेंट थी. तो अब बोलना था जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या नहीं कर रहा है, जो हमारे कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज है ना उसको शो नहीं कर रहा है. Its decisions reflect only Western values and interests and are dominated by a few powers. जनरल असेंबली का जो ये रेजोल्यूशन था उसमें एक कंप्लेंट थी कि इसका जो इनके जो डिसीजंस होते हैं वो वेस्टर्न वैल्यूज को शो करते हैं, उनके इंटरेस्ट को शो करते हैं. कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज ही हैं जो पावरफुल हैं और वो डोमिनेट करती है वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को. इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन. सिक्योरिटी काउंसिल में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. वर्ल्ड को जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उसको इक्वली क्या नहीं कर रखा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है.
इट रिप्रेजेंट्स ओनली फ्यू कंट्रीज। तो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये 3 जो थे मेन कंप्लेंट्स थे जो इस रेजोल्यूशन में 1992 का जो जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली में, उसमें ये 3 मेन कंप्लेंट्स को रिफ्लेक्ट किया। पहला कि सिक्योरिटी काउंसिल इज नो लॉन्गर रिप्रेजेंटिंग द कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल रियलिटीज। कोई भी पॉलिटिकल रियलिटीज जो है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड की, प्रेजेंट वर्ल्ड की, उसको शो नहीं कर रहा है। सेकेंडली, जो भी डिसीजंस होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल्स के वो वेस्टर्न वैल्यूज पे डिपेंड, वेस्टर्न वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं, वेस्टर्न वैल्यूज को की आइडियोलॉजीज को शो करते हैं, उनके इंटरेस्ट को शो करते हैं। और ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो मेंबर्स हैं, कुछ फ्यू कंट्रीज के ही परमानेंट मेंबर्स तो 5 ही हैं, बट जो और भी नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं वो फ्यू कंट्रीज के ही हैं, और वो डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड की अदर नेशंस को। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो उन्होंने शो की थी, इट लैक्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली नहीं है। 193 कंट्रीज मेंबर्स तो हैं, बट यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है इक्वली रिप्रेजेंट नहीं है। कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज ही है जो रिप्रेजेंट सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंट होती है। So, in view of these growing demands for the restructuring of the UN, on 1st January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed. So, how far instead should new Security Council members be chosen? अब देखिए UN के जो आपके 7th सेक्रेटरी जनरल थे कॉफी ए अनान, ठीक है, घाना से जो थे, उन्होंने ये सारी कंप्लेंट्स को सुनते हुए एक डिमांड्स, ये जो ग्रोइंग डिमांड थी, ठीक है, डिमांड्स जो बढ़ती जा रही थी, उसको देखते हुए क्या किया था, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए इंक्वायरी उन्होंने इनिशिएट की थी। कब इनिशिएट की थी? 1 जनवरी 1997 को उन्होंने इनिशिएट की थी। इनका टेन्योर स्टार्ट होते ही उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। 1997 से 2006 तक इनका टेन्योर रहा है। तो उन्होंने इनका टेन्योर स्टार्ट होते ही क्या किया था, अपना ये जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस था उसको, उसके लिए इंक्वायरी इनिशिएट कर दी कि हमें यूएन को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए, एक जो न्यू सिक्योरिटी काउंसिल है उनके मेंबर्स को हम कैसे चूज करेंगे, ठीक है। सो इन द इयर्स सिंस देन द फॉलोइंग आर जस्ट सम ऑफ द क्राइटेरिया दैट हैव बीन प्रपोज्ड फॉर न्यू परमानेंट and new non-permanent members of the security councils. A new number it has been suggested should be, ठीक है। सो बहुत उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने, बहुत सारी कमिटीज ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने सजेशंस दिए, कुछ क्राइटेरियाज को प्रपोज किया कि हमें परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स को कैसे चूज करना है, हाउ वी कैन चूज the permanent and non-permanent members of the Security Council, what is the criteria of choosing those members. तो some of the criteria जो suggested थे वो क्या क्या थे? जो भी कंट्री होगी एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे एक मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, कि उनका जो मिलिट्री है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए। कुछ लोगों का होना चाहिए कि जो यूएन बजट है उसमें एक अच्छा सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, ठीक है, कि ये देखा जाना चाहिए कि वो रेगुलर है कंट्रीब्यूशन में बजट के कि नहीं है, कितना प्रोपोर्शन है उसका, तो एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए। अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या है, एक बड़ी कंट्री होनी चाहिए। पॉपुलेशन के मामले में तो इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ लोगों का बोलना था कि एक ऐसा नेशन होना चाहिए जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, बिग नेशन होना चाहिए। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ऐसा नेशन होना चाहिए, ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करे, जो ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करे, ठीक है, उनका उसकी इम्पोर्टेंस समझे। ऐसे नेशन को हमें परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। या फिर कुछ लोग ये सजेस्ट कर रहे थे अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल more representative of the world's diversity in terms of geographic, economic system and culture.
और लोगों का मानना था, कुछ मेंबर्स का मानना था कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव दे, जैसे कि जियोग्राफिकल बेसिस में भी उसका मतलब वो नेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम भी उसका अच्छा होना चाहिए, कल्चरल बेसिस पे भी वो क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको रिप्रेजेंट करे, कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे, ऐसी कंट्री होनी चाहिए। तो दीज आर लाइक सम ऑफ द सजेशंस गिवन बाय सम ऑफ द मेंबर्स और कमिटीज ऑफ द यूएन, एंड दे सजेस्टेड कि ऐसे इस मतलब इन ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक सिक्योर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, इन क्राइटेरिया से चूज कर सकते हैं। So now clearly each of these criteria has some validity. Obviously कुछ ना कुछ validity है कि इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मिलिट्री होना चाहिए, या यूएन में कितना वो कंट्रीब्यूट करना है, तो कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है, कुछ ना कुछ वैलिडिटी है। Sorry. Government saw advantages in some criteria and disadvantages in others depending on their interest and aspirations. Obviously कुछ लोग जो हैं, अब जैसे एक कोई बिग नेशन है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने जो भी लोगों जिन भी कंट्रीज ने ये सजेशंस दिया, उन्होंने अपने एडवांटेज, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने डिजायर्स एस्पिरेशंस को देखते हुए ये सजेशंस दे दिया। हो सकता है वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज जो है वो जैसे नेपाल, भूटान, बेल्जियम जैसे कंट्रीज है, बहुत ही छोटी कंट्रीज है, वहां की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, ठीक है, तो अब उनका बोलना था कि ऐसी कंट्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो अब वो तो अपनी एस्पिरेशन बता रहे हैं, तो यूएन का यहाँ पे मानना था कि उनका जो इंटरेस्ट है ये शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, ऐसे एरियाज हैं जहाँ के फिजिकल फीचर्स जो हैं, टॉपोग्राफी जो है लिविंग कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है, तो हम इस क्राइटेरिया को कैसे मान सकते हैं? Even if they had no desire to be member of themselves, countries could see that the criteria were problematic. How big an economy or military power did you have to be qualified for Security Council membership? अब आप ये क्राइटेरिया कैसे क्वालिफाई करोगे, कैसे शो करोगे कि एक मिलिट्री पावर, सपोज हमने मिलिट्री पावर का क्राइटेरिया ले लिया कि ओके जो जिस कंट्री की मिलिट्री अच्छी होगी, तो मिलिट्री पावर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, अब डिफेंस में आर्मी भी है, नेवी भी है, आपका नॉर्मल आर्मी भी है, तो अब क्या क्राइटेरिया आप चूज करोगे, कितनी पावरफुल होनी चाहिए? न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू आप देख रहे हो तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने की भी बात चल रही है, तो आप किस बेसिस पे देखोगे कि वहां की मिलिट्री पावर कितनी पावरफुल है, वहां की इकोनॉमी कितनी पावरफुल है, आप किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया होगा सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को क्वालिफाई करने के लिए? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था उनके सामने। What level of budget contribution would enable a state to buy its way into the council? कितना बजट, क्या किस लेवल का बजट होना चाहिए, कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बजट का, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। Was a big population an asset or a liability for a country trying to play a bigger role in the world? अब कुछ कंट्रीज, कुछ मेंबर्स, कुछ लोग जो है वर्ल्ड के, दे थिंक दैट अगर हायर द पॉपुलेशन हायर इज योर लाइबिलिटी, और कुछ लोग पॉपुलेशन को एज एन असेट भी देखते हैं। तो अब क्या कि ऑब्वियसली एक कंट्री के लिए पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो अब वो असेट है, लाइबिलिटी है, कितनी हेल्दी पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें भी देखनी होंगी। तो एक कंट्री जो है बड़ी तो हो सकती है, ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल बेसिस पे बड़ी है एक कंट्री, इसलिए वहां पे पॉपुलेशन भी नो डाउट वहां पे ज्यादा हो सकती है, ठीक है, तो बट क्या वो सारी फुलफिलमेंट हो पा रही है वहां पे, ठीक है, पॉपुलेशन वहां की असेट है कि लाइबिलिटी है, ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन था, कितनी बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहां की पॉपुलेशन असेट है कि लाइबिलिटी है, ये सारी चीजें हम कैसे पता करें? If respect for democracy and human rights was the criteria, countries with excellent records would be in line to be members. But would they be effective as a council members? Obviously,
so many members are there who like जो डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर करते हैं। अगर यही क्राइटेरिया रहा तो वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होगी जिसका जो रिकॉर्ड है काफी एक्सीलेंट रिकॉर्ड रहा है। तो क्या वो इफेक्टिव मेंबर्स हैं, इफेक्टिव हैं फॉर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स? Furthermore, how was the matter of representation to be resolved? तब कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, जो क्लियर नहीं कर पा रहे थे मेंबर्स कि हम इनके आंसर्स कैसे रहें, अग्री नहीं हो पा रहे थे। जो इश्यूज थे उसके जो आंसर्स थे वो प्रॉपर आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे। सो हाउ वाज द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी सॉल्व? कैसे सॉल्व करेंगे रिप्रेजेंटेशन का जो मैटर है हमारा, रिजॉल्व कैसे करें? Did equitable distribution, representation in geographical terms mean that there should be a one seat each from Asia, Africa, and Latin America and the Caribbean? Should the representation on the other hand be by regions or sub-regions that rather than continents? कि continents के basis पे होना चाहिए कि regions और sub-regions के basis पे होना चाहिए? Why should the issue of equitable representation be decided by geography? Geography से क्यों decide करना है? Population से भी decide कर सकते हैं हम उनके work से भी decide कर सकते हैं। तो geography से ही क्यों representation हमें decide करना है? Why not by levels of economic development? Why not, in other words, give more seats to members of the developing world? जो developing world है, developing countries हैं, उनके members को हम क्यों नहीं choose कर रहे हैं? Even here there are difficulties. The developing world consists of countries at many different levels of development. What about culture? Obviously the whole world is a very diverse world, right? And even many countries are like, even in the countries also क्या है, आप diversity देखते हो, cultures, different cultures हैं, different traditions हैं, civilizations हैं। So should different cultures or civilization be given representation in a more balanced way? How does one divide the world by civilizations or cultures given that nations have so many cultural streams within their borders? इंडिया में, इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो, इंडिया में इकलौते ही कितने सारे कल्चर्स हैं, ठीक है, कितने ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, हम किस बेसिस पे जो है मेंबरशिप दें? तो दीज आर लाइक सम ऑफ द क्वेश्चंस जो नॉन आंसरेबल है, उसके जो है परफेक्ट आंसर्स जो है यूएन को नहीं मिल पाए। तो ये जो क्राइटेरिया बताए, अच्छे क्राइटेरिया थे, सजेशंस काफी अच्छी थी, बट जो एक परफेक्ट आंसर या परफेक्ट क्राइटेरिया जो है वो यूएन को अभी तक नहीं मिल पाया है। So a related issue was to change the nature of membership altogether. Some insisted, for instance, that the veto power of the 5 permanent members to be abolished. Now this is important. Some members they insist that जो ये veto power है, first of all होती क्या है veto power? ठीक है, veto power का मतलब होता है कि आप कुछ कंट्रीज को क्या दे रहे हो, आप यू आर गिविंग सम स्पेशल रोल्स, आपको एक स्पेशल रोल दे रहे हो, ठीक है, एक स्पेशल पावर दे रहे हो, जहाँ पे उनका किसी का भी पर्टिकुलर P5 कंट्रीज का जो डिसीजन होगा, अगर उनका एक किसी भी पर्टिकुलर एक कंट्री का भी अगर किसी चीज के लिए नेगेटिव वोट आ गया और उन्होंने डिनाई कर दिया, तो मतलब वो डिसीजन क्या हो जाएगा, अबॉलिश हो जाएगा, राइट? तो वीटो पावर एक स्पेशल पावर होती है, ठीक है, जिस उस पावर के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन, कोई भी पॉलिसी जो है वो अबॉलिश हो सकती है, ठीक है। सो जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनकी वीटो पावर को अबॉलिश करने के लिए क्या किया गया, सजेशंस आ रहे थे, बहुत सारी कंट्रीज इंसिस्ट कर रही हैं। Many perceived the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality in the UN, and thought that the veto was no longer right or relevant. कि okay, it is like clearly okay कि at the time of the Cold War, after the Second World War, कि आपने veto power दे दी कुछ countries को, क्योंकि League of the Nation का जो experience था उतना अच्छा नहीं था। But after the end of the Cold War, after the disintegration of the Soviet Union, अब जो है ये veto power जो है एक डेमोक्रेसी को शो नहीं कर रहा है, इक्वालिटी को शो नहीं कर रहा है, तो ये जो veto power है अब एक राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कुछ लोगों का ये मानना था।
So in the security councils there are 5 permanent members and 10 non-permanent members. The charter आप सबको पता ही है क्या होता है. चार्टर का मतलब होता है एक written grant, जो ठीक है written grant को बोलते हैं. Charter gave the permanent members a privileged position to bring about stability in the world after the Second World War. The main privileges of the 5 permanent members are, देखिए अंडरलाइन कर लीजिए क्या क्या है. परमानेंसी एंड द वीटो पावर, इनकी मेन पावर क्या है? परमानेंसी एंड वीटो पावर इनकी मेन पावर है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. Non-permanent members serve for only 2 years at a time and give away after that period to newly elected members. 2 years के टेन्योर के लिए होते हैं एंड आफ्टर दैट जब तक न्यू इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं उस टाइम पीरियड तक उनका जो टेन्योर रहता है. एक a country cannot be re-elected immediately after completing a term of 2 years. अगर for example right now India is a non-permanent member of Security Council, but India re-elect नहीं हो सकता just after its completion of tenure. India immediately re-elect नहीं हो सकता. The non-permanent members are elected in a manner so that they represent all the continents of the world. अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको चूज कैसे किया जाता है? उनको ऐसे चूज किया जाता है कि जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अंटार्कटिका की बात नहीं करते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी उनको क्या करें, उसको वहां से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. तो नॉन परमानेंसी जो है, नॉन परमानेंट मेंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के उसको रिप्रेजेंट कर सके, हर एक एरिया से कोई ना कोई member आ जाए. So the non-permanent members do not have the veto power. अब देखिए एक डिफरेंस अगर पूछा जाता है कि परमानेंट मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो परमानेंट मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर में परमानेंट रहता है, नॉन परमानेंट रहता है, ठीक है. नॉन परमानेंट के पास वीटो पावर नहीं होती है. Now what is veto power? In taking decisions the Security Council proceeds by voting. कोई भी डिसीजन के लिए क्या होता है? वोटिंग होती है. कोई भी एक डिसीजन लिया, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली कोई भी एक डिसीजन लिया, उसके लिए उन्होंने वोटिंग रखी, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में. हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है. सो द परमानेंट मेंबर्स कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर. फॉर एग्जांपल कोई 8 पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, उन्होंने 8 पर्सनालिटीज ने वोट कर दिया है और 7 ने क्या कर दिया है, 6 ने कर दिया है. तो अगर 8 तो है, मेजॉरिटी में हो गई 8 कि 8 ने डिसीजन ले लिया है, बट अगर किसी भी परमानेंट मेंबर ने उस नॉन परमानेंट मेंबर में क्या कर दिया कि अपना नेगेटिव वोट दे दिया, तो वो मेजॉरिटी नहीं रहेगी, वो मेजॉरिटी में डिसीजन नहीं लिया जाएगा. Even if all other permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can stall the decision. This negative vote is the veto. ये जो negative vote है, 8 मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, 8 वोट्स थे, ठीक है, किसी ने 8 वोट दिए किसी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए, और किसी ने और एक ने क्या कर दिया, 6 वोट दे दिया. अब इस 6 वोट्स में अगर 7 वोट्स में, इन 7 वोट्स में अगर कोई भी एक परमानेंट मेंबर है और उसने इसके लिए नेगेटिव वोट दे दिया है, तो वो जो डिसीजन है वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉल हो जाएगा, मतलब कि वो अबॉलिश हो जाएगा, वो रुक जाएगा, वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ठीक है. While there has been a move to abolish or modify the veto system, there is also a realization that the permanent members are unlikely to agree to such a reform. Also, the world may not be ready for such a radical step, even though the Cold War is over. Without the veto, there is the danger, as in 1945, that the great powers would lose interest in the world body. That they would that they would do what they pleased outside it, and that without their support and involvement, the body would be ineffective. अब देखिए, ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. बहुत सारे लोग चाहते भी हैं वीटो को क्या है, हटा दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए इस सिस्टम को, बट साथ में ये भी रियलाइजेशन है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो वीटो पावर को फर्स्ट ऑफ ऑल वीटो में कोई रिफॉर्म लेकर आना नहीं चाहते हैं. और सेकेंडली वर्ल्ड में, ठीक है, आज भी ये स्टेप है, ये लेने में कोल्ड वॉर खत्म हुए अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स होने वाले हैं, और फिर भी
इस स्टेप को लेने में बहुत ही डर रहे हैं लोग कि हमें ये स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन का हाल हुआ था, ठीक है, वो क्या रहा था, वो डेंजर, मतलब कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्रीज हैं, अगर उनको परमानेंसी नहीं रही, उनके पास परमानेंट मेंबरशिप नहीं रही, तो वो अपनी मनमानी करेंगे, आर्बिट्रेरी मेथड से चलेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। और ऑब्वियसली जो वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज है, अगर उनका सपोर्ट किसी भी बॉडी में सपोर्ट नहीं रहेगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो कोई भी यूनाइटेड नेशंस जैसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो नहीं चल पाएगी। ठीक है, सो नाउ जस्ट लुक एट दिस चार्ट और पाई चार्ट। ठीक है, यूज ऑफ वेटो पावर बाय परमानेंट मेंबर्स अप टू 1 जून 2018, यूएसएसआर और यू कैन से रशिया 135 टाइम्स है ना वेटो का यूज किया है। ठीक है, यूएसए ने 84 टाइम्स किया है, यूके ने 32 टाइम्स, फ्रांस ने 18 टाइम्स एंड चाइना ने 11 टाइम्स जो है अपनी वीटो पावर का, ठीक है, यूज किया है टिल जून 2018। तो पता होना चाहिए ये पाई चार्ट का आपको। ठीक है,